यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग अभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उस सब्जेक्ट में हम लोगों ने वाटर डिमांड और उसके सोर्सेज के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेट्स मेमोराइज। First one is a physical water quality parameter, second one is a chemical parameters and third one is a biological parameters. So physical parameters में suspended solids, turbidity, color, taste and odor and a temperature था। और chemical parameters में भी कुछ ऐसे parts थे like the dissolved solids, electrical conductivity, pH, hardness, all the alkalinity and some other compounds like the nitrogen, phosphorus, all these things. है ना। बायोलॉजिकल के पोर्शन अलग हैं जिसमें हम लोग पैथोजेंस वगैरह को फाइंड आउट करते हैं। सो हम लोगों ने फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से स्टार्ट किया था पहले। उसमें हम लोगों ने सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, दैट व्हाट आर द सस्पेंडेड सॉलिड्स, हाउ वी कैन मेजर द सस्पेंडेड सॉलिड्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद सस्पेंडेड सॉलिड एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स इन अ वाटर, whether the suspended solids is useful in a water or not, whether it interacts with the light or not, all these will be handled in a turbidity. So turbidity is the second most important part of the physical water quality parameters because turbidity causes various problems in a water. Like anyone does not require the water that has the turbidity. Turbidity is nothing but is the color interference with the suspended solids in a water. Like if there will be a suspended solids in a water, then if the light penetrates in the water, then light either absorbed by the suspended solids or the scattered by the suspended solids. Like if there will be a beaker like that. In this there is a water, if there will be a water, okay, if there is a suspended solids in that, in this suspension there is a suspended solids like that. If light comes on the water surface, then it goes beneath the water level, then it will either absorbed by the suspended solids or scattered by the suspended solids from its original direction, or it is reflected by the suspended solids. So this property of light absorbance or scattering is called the turbidity. So as the definition suggests, that the turbidity is the measure through which white light or any light either absorbed or scattered by the suspended fraction of solids present in a water. As I have told previously, there are 2 types of solids in a water. First one is a suspended solids and second one is a dissolved solids. One more fraction in between the suspended solids and dissolved solids is called the colloidal solids. But basically, as I have suggested, that the suspended solids and a dissolved solid is not the true picture measurement. Like that is the non-filterable solids and a filterable solid. That the solid which is remain on the surface of a filter paper is called the non-filterable solids, and a solids that pass through the filter paper is called the filterable solid. So does not go beyond that. I have discussed these in a previous classes. So how turbidity causes various problems in a water body, is the water body as well as the drinking water. So first one is it reduces the, so let's go to the second one, that turbid water is not appropriate for drinking purpose. Okay, second one, turbid water in natural water bodies interferes with the natural photosynthesis and reduces the depth of a photic zone. Okay, what is this? Like there is a surface of a water body या natural water body like the lakes, ponds या rivers कुछ है, उस वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर लाइट पड़ रही है, लेकिन इफ देयर विल बी अ टर्बिडिटी इन दैट वाटर, देन वो जो लाइट है दैट विल नॉट गो एट द स्पेसिफिक लेवल्स एट विच इट कुड गो बिफोर द वाटर इफ देयर विल नॉट बी एन टर्बिडिटी. ओके, उस लेवल तक लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी जिस लेवल तक अगर टर्बिडिटी नहीं होती तो पेनिट्रेट करती.
सो प्रॉब्लम इज दैट कि अगर लाइट पेनेट्रेट नहीं करेगी तो लेक में या पॉन्ड में बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे जो वेजिटेशंस, या अगर लेक है तो, या रिवर है या लेक है कुछ भी, तो उसके सरफेस के ऊपर जो लिटरल जोन होता है उस जोन पे जो वेजिटेशंस है या जो भी मतलब वेजिटेशन है या नेचुरल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इन लेक में या एल्गी वगैरह है, सो उसकी नेचुरल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज लाइट पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन निकलता है इन दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो डिक्रीज कर जाएगा। जब ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा तो बेसिकली द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा, एंड वी आर बेसिकली नो हाउ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर बॉडी। लाइक इफ देयर विल नॉट बी अ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर जीरो हो गया, ठीक है, देन देयर विल बी नो वेजिटेशंस और देयर विल बी नो प्लांट्स एंड अदर स्पेसिफिक एनिमल्स और दीज विल बी इन अ वाटर बॉडी। और अगर ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो अगर ये ऑक्सीजन की कमी 4 मिलीग्राम पर लीटर, 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो उस वाटर बॉडी में जितनी भी फिश वगैरह रहेंगी वो डिप्लीट कर देंगे, यानी कि डिप्लीशन ऑफ फिश हो जाएगा इन अ वाटर बॉडी। सो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थर्ड थिंग इज दैट कि रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीनेशन। एक्चुअली क्लोरीनेशन की एफिशिएंसी कैसे रिड्यूस करेगा, देखिए, इफ देयर विल बी अ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन अ वाटर दैट कॉजेज द टर्बिडिटी, देन अगर हम लोग उसमें क्लोरीन देंगे डिसइंफेक्शन के लिए, डिसइंफेक्टेंट रहेगा, तो क्लोरीन ऑन द सरफेस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एब्जॉर्ब हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन होगा ना कि एब्जॉर्प्शन। सरफेस जो है ये सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो टर्बिडिटी कॉज कर रहा है, इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ दैट द क्लोरीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब ये सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल होंगे वाटर बॉडी में या टैंक में, अगर सेटल होंगे, टोल्ड इनिशियली आई हैव टोल्ड इन अ फर्स्ट लेक्चर दैट जब हम लोग ट्रीटमेंट, सब टोटल ट्रीटमेंट हो जाता है और जब क्लोरीनेशन कर देते हैं, आफ्टर द क्लोरीनेशन हम लोग उस वाटर को स्टोर करते हैं, लाइक सम टाइम, लाइक द 30 मिनट्स जो हम लोगों का कॉन्टैक्ट पीरियड होता है क्लोरीनेशन का, उस कॉन्टैक्ट पीरियड में ये सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल हो जाएंगे, एंड व्हेन दीज सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल देन इट विल आल्सो सेटल द क्लोरीन। So the chlorine which will be a residual and goes to the water, goes to the pipelines, ताकि फर्दर कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया उस पर इंटरफेयर ना कर सके, वो नहीं जाएगा, वो वहीं पे सेटल हो जाएगा। सो चांसेस ऑफ इनकमिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया in a pipeline increases when the turbidity is more. And second thing is that इनिशियली जैसे जैसे क्लोरीनेशन थे उस समय भी कुछ सेटलमेंट हो जाता है, तो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एंड क्लोरीन जो है वो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ में कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विद द टर्बिडिटी। देयर इज वन बेनिफिशियल रोल ऑफ टर्बिडिटी इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। लाइक जब सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक लगाते हैं, तो जब सस्पेंडेड सॉलिड्स के साइज छोटा होता है, लाइक इन अ रेंज ऑफ कोलॉइडल सॉलिड्स की जब रेंज में होता है, तो दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली बाय द सेडिमेंटेशन टैंक, देन वी शुड गो फॉर द coagulation and flocculation methods. So like we use the clariflocculator in which there will be a coagulation, flocculation, मिक्सिंग एंड सेडिमेंटेशन, चारों पार्ट्स एक ही में जाते हैं। वो हम लोग आगे अगले 1-2 लेक्चर्स के बाद उसको समझेंगे कि व्हाट इज द क्लैरिफ्लॉकुलेटर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सस्पेंडेड, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, तो जब उसमें हम लोग कोआगुलेशन करते हैं और जब हम लोग कोआगुलेंट का डोज डालते हैं, अब कोआगुलेंट डिफरेंट कोआगुलेंट्स क्या क्या है, लाइक एलम, फिटकरी, तो दीज आर द कोआगुलेंट्स वी यूज। सो जब कोआगुलेशन हम लोग करते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एलम की रिक्वायरमेंट है या डोज की रिक्वायरमेंट की हम लोग जार टेस्ट करते हैं। तो जार टेस्ट में जब धीरे धीरे हम लोग कोआगुलेंट्स डालते जाते हैं, तो अगर वहाँ पे टर्बिडिटी प्रेजेंट है, तो टर्बिडिटी क्या करता है, एक न्यूक्लियाई प्रोवाइड करता है, जिस न्यूक्लियाई के सरफेस के ऊपर
फ्लॉक बनता है और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स दूर दूर किसी सेक्शन में रहते हैं वो सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स को उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज सरफेस रहता है। निगेटिवली चार्ज सरफेस होने की वजह के बाद में उसके ऊपर जो हमारा टर्बिडिटी रहता है, वो टर्बिडिटी में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, लाइक ये हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो जो ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है तो इसका जो सरफेस है दैट इज द निगेटिवली चार्ज सरफेस, उसके ऊपर एलम जो है दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज सरफेस। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से कंबाइंड होकर के यहाँ पे ज्वाइंट बनाएंगे, देन बॉन्ड बनाएंगे, देन उसके बाद में जो एलम का दूसरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो नेक्स्ट दूसरे जो सस्पेंडेड सॉलिड निगेटिवली चार्ज है उसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। सो इसकी वजह से ये फ्लॉक फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। सो फ्लॉक फॉर्मेशन में जो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं ये उस फ्लॉक में न्यूक्लियाई का रोल प्ले करेगा और न्यूक्लियाई होने की वजह से ये डेंस फ्लॉक बनाएगा, डेंसर फ्लॉक बनाएगा। और जैसे जैसे बेसिकली वी नो कि जैसे जैसे हम लोगों का ये फ्लॉक फॉर्मेशन होगा देन हम लोगों का उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होता जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगा यानी कि डेंसिटी भी फिर इनके साइड साइड हाइट बाई साइड डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा, तो ये नीचे की तरफ सेटल करते जाएंगे, साइज बड़ा होता जा रहा है तो ये सेटल हो जाएगा और सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव हो जाएंगे। तो दीज आर द एडवांटेजियस नेचर ऑफ suspended solids along with the turbidity in a water treatment process like suspended solids removal unit like the sedimentation tank. Okay, so next we will go for the different types of measurement, how we measure the turbidity. So different measurement procedure of the turbidity we should go for that. So let's look on that. So after understanding that what is the turbidity and what are the different problems with the turbidity, let's look on the how we can measure the turbidity. यानी कि किसी भी वाटर में कितना turbidity है उसको measurement किस तरीके से करेंगे. So measurement of turbidity is also important. So measurement takes the 4 methods. First one is a turbidity rod. Second one is a Jackson turbidity meter. Third one is a Bayliss turbidity meter and a fourth one is नेफ्लोमीटर. एक्चुअली में ये सारे एक ही सोर्स में यूज नहीं होते हैं. लाइक टर्बिडिटी रॉड से मेजरमेंट हमारा फील्ड मेथड है. लाइक किसी भी हमारा अगर नेचुरल वाटर बॉडी उसमें मेजरमेंट के लिए हम लोग टर्बिडिटी रॉड का यूज करेंगे. जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलिस टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर, दीज 3 आर द लेबोरेटरी मेथड. इसमें हम लोग लेबोरेटरी में टर्बिडिटी मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके, नाउ इन सबके मेजरमेंट की जो एफिशिएंसी भी डिफरेंट है. लाइक इसे नियरली हम लोग 5 NTU तक 5 नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट तक नियरली यूज कर सकते हैं. जैक्सन टर्बिडिटी मीटर को मेजरमेंट के लिए हमारा लगभग 25 ppm या 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा चाहिए. नेफ्लोमीटर लगभग 0 से या 2 मिलीग्राम पर लीटर से आसपास अगर जो टर्बिडिटी है तो उतना मेजरमेंट करेंगे. और ये सबसे एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है जो नियरली 0.2, 0.3, 0.1 ppm तक टर्बिडिटी भी फाइंड आउट हो सकती है. सबके प्रिंसिपल्स भी डिफरेंट हैं. सो हम लोग 1 by 1 इसको समझते हैं कि व्हाट इज टर्बिडिटी रॉड, व्हाट इज जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, व्हाट इज बेलिस टर्बिडिटी मीटर एंड व्हाट इज नेफ्लोमीटर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो फर्स्ट वन वी विल गो फॉर द टर्बिडिटी रॉड. ओके, सो फर्स्ट मेथड ऑफ टर्बिडिटी मेजरमेंट इज टर्बिडिटी रॉड. सो देयर इज अ apparatus of turbidity rod like that. This is the turbidity rod. There is a draft layer where we look the what is the reading of turbidity. There is a aluminum rod in which there is a graduations. अब क्या होगा, स्टार्टिंग में 0 रहेगी रीडिंग और जैसे जैसे बॉटम की तरफ बढ़ते जाएंगे रीडिंग इंक्रीज होगी. लाइक द 1 2 3 4 5 टिल अप टू 200. ठीक है. देयर इज अ निकल रिंग. उस रिंग से यहाँ पर एक प्लेटिनम नीडल अटैच्ड है. अब क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, लाइक इफ देयर विल बी अ वाटर बॉडी, कि हमारी अगर वाटर बॉडी है,
ये वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में हम लोग इस प्लेटिनम निडल को या ग्रेजुएटेड एल्यूमिनियम रॉड को नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे और इस जगह से, इस डायरेक्शन से हम लोग ये देखेंगे कि किस लेवल तक हमारा प्लेटिनम निडल दिख रही है। वो लेवल जिस पर पहुंचते ही प्लेटिनम निडल जस्ट इनविजिबल हो जाए। लुक ऑन दैट, कि जिस लेवल तक पहुंचने पे प्लेटिनम निडल दिखना बंद हो जाए, जस्ट इनविजिबल हो जाए, उस लेवल को हम लोग यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। वही डायरेक्टली हमको रिप्रेजेंट करेगा टर्बिडिटी, कि कितनी मिलीग्राम पर लीटर टर्बिडिटी है, या उसको एनटीयू नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट में भी बेसिकली बोलते हैं, वो यूनिट वही है। तो कितने मिलीग्राम पर लीटर टर्बिडिटी है वो हमको यहीं से पता चल जाएगा डायरेक्टली। अब देखिए टर्बिडिटी की जो यूनिट है वो क्या है, यानी कि इसकी एक यूनिट है, ग्रेजुएशन यूनिट का मतलब क्या है? मतलब है कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज कॉल्ड द 1 यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक बीकर लेंगे या एक सिलेंडर लें जिसमें 1 लीटर डिस्टिल वाटर को डालें, उस 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका SiO2 को पुट करें और स्टीयर करें। स्टीयर करने के बाद में उस पूरे वाटर कॉलम में जितने अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी अब रहेगी दैट इज द 1 यूनिट। अब इंक्रीज कैसे करेगा? अगर हम लोग 2 मिलीग्राम डालेंगे देन 2 मिलीग्राम पर लीटर, 3 मिलीग्राम सिलिका के बराबर टर्बिडिटी होगी तो 3 मिलीग्राम पर लीटर। सो दिस द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी बाय द टर्बिडिटी रॉड। तो बेसिकली ये हमारा एक फील्ड मेथड है, इसके द्वारा हम लोग फील्ड में या वाटर बॉडी में पता करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी है। दिस इज नॉट बेसिकली यूज्ड इन अ लेबोरेटरी मेथड। एंड वन मोर थिंग, इस मेथड को हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें यूज भी नहीं करते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन अ वाटर बॉडी या नेचुरल स्ट्रीम के लिए मेथड है। अब हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज में कौन सा यूज करते हैं वो हम लोग आगे समझेंगे, लाइक द बेलिस टर्बिडिटी मीटर एंड नेफ्लोमीटर। सो सेकेंड वन इज द जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। सो लेट्स लुक ऑन द जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। So after understanding the concept of turbidity rod, we will go for the Jackson turbidity meter. So what is Jackson turbidity meter? Jackson turbidity meter is nothing but an instrument that is used for measurement of a turbidity in a laboratory. But this is basically used for the water that have the turbidity more than 25 milligram per liter या 25 ppm. उस वाटर के लिए यूज होगा जिसकी टर्बिडिटी 25 मिलीग्राम पर लीटर या 25 ppm से ज़्यादा है। So as we know that the in drinking water we do not allow the turbidity more than 5 milligram per liter. So initially generally it is required for the 1 milligram per liter या 1 NTU, but in the absence of other sources we will go for the 5 milligram per liter. So this is not in the range of that, this is more than the prescribed limit in the IS 10500 2012. So this is not used for the drinking water. So what is the procedure? And there is a apparatus, like here is a base, इस base के ऊपर there is a stand, on the stand there is a top frame. Under the top frame, beneath the top frame there is a candle, ठीक है। अब on the top frame there is a container and a graduated glass tube, and there is a diaphragm where we can look the readings. Okay, so there are the graduations or reading. We will start filling the water, and यहाँ से हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे कि किस पॉइंट पे, यानी कि कितने लेवल ऑफ वाटर फिलिंग पर ये जो कैंडल है ये जस्ट इनविजिबल हो जाए। लाइक उसमें प्लेटिनम निडल को या जब एल्यूमिनियम रॉड को हम लोग पुट करते थे उसमें लगी प्लेटिनम निडल जिस लेवल पे जस्ट इनविजिबल हो जाती थी उसको हम लोग बोलते थे। इसी तरीके से इसमें जो है वो जिस लेवल तक वाटर फिलिंग पे ये फ्लेम जस्ट इनविजिबल हो जाए, कैंडल की फ्लेम जस्ट इनविजिबल हो जाए, उस लेवल को ही हम लोग बोल देंगे कि इतनी टर्बिडिटी है। अब समझिए
जब हम वाटर को फिल करना स्टार्ट करेंगे, लाइक हमने जस्ट वाटर थोड़ा सा ही फिल किया और ये फ्लेम जस्ट इनविजिबल हो गई, तो आप लोग बताइए, सोचिए कि इसमें टर्बिडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। लाइक जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि उसमें ग्रेजुएशंस जो है वो उल्टी साइड थे, यानी कि हम लोगों ने थोड़ा ही एल्यूमिनियम रॉड को पुट किया था, और जैसे ही थोड़ा ही पुट किया और वो अगर प्लेटिनम इनविजिबल हो गई इन अ टर्बिडिटी रॉड, देन देयर विल बी अ हायर टर्बिडिटी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारा इस जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में कंटेनर में थोड़ा ही वाटर को फिल किया, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ वाटर या लेस डेप्थ ऑफ वाटर फिलिंग पर ही अगर हमारा ये फ्लेम इनविजिबल हो गई, विच मीन्स कि दैट वाटर हैज द टर्बिडिटी इन वेरी हायर क्वांटिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द वाटर फिलिंग इज वेरी हाई, यानी कि अगर डेप्थ ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा फिल कर सकने पर तक भी हमारी कैंडल या फ्लेम ये इनविजिबल नहीं होती है या दिखना बंद नहीं होती है, तो उस वाटर में टर्बिडिटी काफ़ी कम है, यानी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, ओपेसिटी कम है। ओके, ये हो गया हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, विच इज़ नॉट द फील्ड मेथड, दैट इज बेसिकली अ लेबोरेटरी मेथड। लेकिन इसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द मेथड दैट कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पस? तो बेसिकली दीज आर द टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज द बेयलिश टर्बिडिटी मीटर एंड द सेकंड वन इज द नेफ्लोमीटर। तो लेट्स लुक ऑन द बेयलिश टर्बिडिटी मीटर एंड द नेफ्लोमीटर इन द दिस सेक्शन। ओके, so we will go for the, after understanding the Jackson turbidity meter, we will go for the Bayliss turbidity meter. So how the Bayliss turbidity meter is different from that? The Bayliss turbidity meter is more precise instrument. It can measure the turbidity nearly the 2 milligram per liter, up to the 2 milligram per liters. So here is a instruments mechanism, like अगर हम लोग इसका साइड लाइन से देखते हैं इसको, so if we look for the sides, so here is a galvanized iron box or the painted with a dark color. ये galvanized iron box है जो painted है dark color से। इसमें side by side 2 glass tubes लगी हुई हैं। इसका क्रॉस सेक्शन में if you go for that, then there is a 2 glass tubes. So किस तरीके से मेजरमेंट होगा? फर्स्ट ग्लास ट्यूब में हम लोग एक स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे जिसकी टर्बिडिटी हमको पता है। सेकेंड में हम लोग एक टेस्ट सैंपल लेंगे जिसकी टर्बिडिटी हमको निकालनी है। सो इससे हम लोगों को क्या समझा? दिस इज द बेस्ड ऑन द कलर मैचिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसको हम लोग कलर मैचिंग टेक्निक्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? इनिशियली देयर इज अ सैंपल जिसकी टर्बिडिटी हमको पता है, लाइक कि एक स्टैंडर्ड सैंपल है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से लेकर के 100-200 मिलीग्राम पर लीटर तक हम लोग उसकी स्टैंडर्ड टर्बिडिटी पता है। उसको पता कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों ने इनिशियली बताया था एनटीयू वाला कि 1 मिलीग्राम सिलिका को डाल करके 1 लीटर में जो टर्बिडिटी देगा दैट इज द 1 यूनिट रहेगी। तो 0.1 मिलीग्राम सिलिका को डालेंगे तो 0.1 एनटीयू की टर्बिडिटी है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर की टर्बिडिटी रहेगी। सो उस तरीके से एक स्टैंडर्ड सैंपल हम लोग बना के रख लेते हैं। उस सैंपल से हम लोग डिफरेंट सैंपल से टेस्ट करते हैं। अब टेस्टिंग के प्रोसीजर क्या है देखिए, हेयर इज अ 250 वाट बल्ब रहेगा, उससे रेज निकलेंगी, बैक साइड में एक रिफ्लेक्टर रहेगा, उस रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट सीधा रहेगी। यहाँ पे ब्लू कोबाल्ट ग्लास प्लेट रहेगा और बॉटम में व्हाइट ओपल ग्लास प्लेट रहेगा जिसके ऊपर ये ट्यूब्स जो है वो एस्टेब्लिश रहेंगी। वो होगा क्या कि जब ये लाइट्स जाएगा तो इससे टकराने के बाद में इसको इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ में लाइट रेस जाने लगेगी और उसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंस ही हम लोग आइस से देखते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन से लाइट इंसिडेंस हो रही है उसी डायरेक्शन में आइस को अलाइन करके और हम लोग देखते हैं। तो दिस आर द बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रिंसिपल, बट दिस इज द कलर मैचिंग टेक्निक। ठीक है, तो ये उसका प्रोसीजर है, इसमें इस तरीके से इसमें रहता है। अब होगा क्या कि एक टेस्ट सैंपल है और एक स्टैंडर्ड सैंपल है। हम लोग इनिशियली एट फर्स्ट सबसे लोअर अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी की इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं, टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सैंपल डालते हैं
उससे हम लोग इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, या सबसे ज़्यादा किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा से स्टार्ट कर लेते हैं कि एक मतलब सैंपल रहेगा, उससे एनालिसिस करते वक्त में हम लोगों को एक नियरली वी विल गेट टू नो अबाउट दैट कि नियरली इस सैंपल के आसपास में टर्बिडिटी होगी, तो हम लोग उससे डालते हैं, फिर उससे और प्रेसाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने एक अपना ये टेस्ट सैंपल लगा दिया, साइड में एक टर्बिडिटी का लगाया हमने स्टैंडर्ड सैंपल। लेट्स लुक कि उन दोनों का कलर एक दूसरे से मैच आउट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अपने टेस्ट सैंपल को टच नहीं करेंगे, टेस्ट सैंपल को एज इट इज रहने देंगे, बट वी विल चेंज द स्टैंडर्ड सैंपल, कोई दूसरा स्टैंडर्ड सैंपल डालेंगे जिसकी टर्बिडिटी नियरली उसके आसपास हो। और इस तरीके से डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीटिशंस करके हम लोग कलर मैच करके देखते हैं कि इन दोनों का कलर जिस पॉइंट पे मैच कर जाएगा यानी कि उससे टर्बिडिटी रहेगी। तो इसे प्रिसाइजली हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, दिस हैज द दैट मच अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी एट विच वी हैव द प्रीवियसली वन। ठीक है, इसी तरीके का ही एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्लोमीटर। ओके, फर्स्ट वी हैव द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द नेफ्लोमीटर। नेफ्लोमीटर जो है वो सबसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या करते हैं, जो ये आइस के थ्रू हम लोग कलर चेक कर रहे हैं इन अ बेलिश टर्बिडिटी मीटर में, ठीक है, वो आइस के थ्रू कलर चेक ना करके यहाँ पे हम लोग लाइट फोटोमीटर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फोटोमीटर लगा देते हैं। वो फोटोमीटर क्या करता है, जो यहाँ से लाइट्स आएगी इस सैंपल से स्कैटर होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोटोमीटर लगाते हैं। दैट फोटोमीटर रिकॉर्ड्स कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है स्कैटर हुआ। ठीक है, तो उसको ही हम लोग चेक करते हैं नेफ्लोमीटर से। ठीक है, सो इसमें भी बेसिकली 2 सैंपल्स रखते हैं, कलर चेक करते हैं, स्टैंडर्ड का सैंपल रहता है, कलर मैचिंग टेक्निक है, बेसिक प्रिंसिपल सेम है, बट चेंज क्या है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। और चूंकि फोटोमीटर लगा हुआ है तो बहुत प्रिसाइजली वी कैन चेक लाइक द 0.1 मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर भी टर्बिडिटी हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज फोटोमीटर की प्रिसीजन बहुत हाई रहता है। ठीक है, अब क्या है, यूनिट इसकी क्या है, तो लेट्स लुक ऑन द यूनिट। सो बेसिकली जो यूनिट रहेगा हमारा इसका, ठीक है, वो NTU ही रहेगा। तो NTU जो है वो बेसिकली नेफ्लोमीटर के टर्म में ही फाइंड आउट होता है। अगर हमारा सिलिका यूज होता है SiO2 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, यानी कि 1 मिलीग्राम ऑफ SiO2 in 1 liter of distilled water. So this unit को हम लोग बोलते हैं नेफ्लोमीट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म में इसको ही हम लोग NTU भी बोल देते हैं। बट अगर इस सिलिका की जगह पे हम लोग फॉर्मेजीन नामक कंपाउंड को अगर हम लोग डाल दें, लाइक द फॉर्मेजीन, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको डाल दें इस जगह पर, 1 मिलीग्राम ऑफ फॉर्मेजीन इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर अगर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं FTU, या फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा नेफ्लोमीटर हो जाएगा। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, ठीक है,
कि NTU किसके लिए है, तो जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रिंसिपल की बात हो तभी हम लोग यूनिट NTU की बात करेंगे। यानी कि अगर एग्जाम में किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि NTU किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, या NTU यूनिट किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, या FTU किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, सो दैट इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रिंसिपल। एंड अगर हम लोग BTU के बारे में बात करें, बेलिश टर्बिडिटी यूनिट, देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिफरेंट सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज जो है, जब हमारा रन ऑफ आता है, ठीक है, तो जो रन ऑफ किसी भी वाटर बॉडी में आता है, तो रन ऑफ के साथ में इनऑर्गेनिक सॉलिड्स लाइक द क्ले, सिल्ट, ये सब आता है। वो जब सिल्ट यानी कि सिलिका वगैरह आता है, वो जब किसी भी वाटर बॉडी में आता है तो वो पूरी डेप्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वही हमारा टर्बिडिटी कॉज करता है। दूसरा क्या है कि अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स किसी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक मैटर भी कुछ कलर इंपार्ट या टर्बिडिटी इंपार्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द सोर्सेज ऑफ टर्बिडिटी इन अ नेचुरल वाटर और द वाटर सोर्सेज। ओके, टर्बिडिटी ऐसा नहीं है कि केवल इसी में, टर्बिडिटी में बी इन द ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर में भी टर्बिडिटी हो सकती है, ठीक है। लाइक कि अगर हमारा कोई भी सॉलिड्स है, वो कुछ सम अमाउंट ऑफ सॉलिड्स अगर जो आ रहा है, लाइक कि अगर हमारा जिस पंप के थ्रू निकालना है उस पंप के स्टेनर्स में कुछ प्रॉब्लम है, उससे कुछ छोटे पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा टर्बिडिटी कॉज करेंगे। तो वी बेसिकली डू नॉट से कि ग्राउंड वाटर में टर्बिडिटी नहीं होती है, सरफेस वाटर में होती है। Turbidity will be more in a surface water, but it can be in a ground water, ठीक है। So these all are the basic concepts of the turbidity under the physical parameters of water quality, ठीक है। तो 4 methods हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, बेलिश टर्बिडिटी मीटर एंड अ नेफ्लोमीटर। सो नेक्स्ट वी विल लुक फॉर द कलर। सो आज हम लोगों ने पढ़ा कि अंडर द पोर्शन ऑफ फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर वी हैव गॉट थ्रू अबाउट द टर्बिडिटी। सो टर्बिडिटी, हाउ द टर्बिडिटी रिलेटेड विद द सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स विद द टर्बिडिटी, व्हाट इज टर्बिडिटी, यूनिट्स ऑफ टर्बिडिटी, एंड what are the different methods how we will measure the turbidity, like the turbidity rod, Jackson turbidity meter, nephelometer and a Bayliss turbidity meter, how they all are different from each other, what is the precision limits up to which they can measure the turbidity, what are the different units on the basis of that they work. So ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। So next lecture में हम लोग जो है वो कलर टेस्ट एंड ऑर्डर और टेम्परेचर को ख़त्म करेंगे या कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग उसके नेक्स्ट लेक्चर से केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ठीक है, और पीएच, नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड इफ you guys are new in this channel, then just press the bell button so that you guys will get the latest update of my video. Thank you very much.